میری بھائی اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر تمام مقدسین کا تہوار مناتے ہیں۔ ہم آج کے دن سینٹ بال بشپ سیمسن شوگردین اور تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے مومنین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے دن ہم اس عبادت کے ذریعے سے تمام مقدسین کی شفاعت اور سفارش طلب کرتے ہیں کہ مقدسین کی شفاعت اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں، جو بے ناروی کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں ناچاکی اور ناانصافی ہے، وہ جو بے اولاد ہیں، وہ جو روزگار کی تلاش میں خدا سے منت اور دعا کرتے ہیں، وہ جو اپنی زندگی میں نیا معنی تلاش کر رہے ہیں، ان سب کی عرضوں کو بھی آج مقدسین کی شفاعت کے ساتھ ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آج ہمارے بچوں نے مختلف مقدسین کے عکس کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ان مقدسین کی شفاعت اور دعائیں کتنی کلیسیا کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں۔ وہ کلیسیا جہاں پر کمزور بھی ہیں اور زور آور بھی ہیں، روحانی طور پر ہم کمزور بھی ہیں اور روحانی طور پر ہمارے ہم سفر زور آور بھی ہیں۔ ان مقدسین کی شفاعت کلیسیا کی جان اور کلیسیا کی طاقت ہے۔ اس لیے جب ہم ان مقدسین کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، تب تک ہمارا ایمان اور زیادہ تقویت پاتا ہے اور ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہماری عالمگیر کلیسیا کو، مقامی کلیسیائے پاکستان کو، بالخصوص ہماری ڈائیوسس حیدرآباد کے تمام مومنین کو ایمانی طور پر مضبوطی عطا کرے، تاکہ ہم مقدسین جیسا چال چلن اپنا کر خدا یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بنے۔ آج کی اقدس قربانی ہم گزارتے ہیں آپ سب کے لیے، آپ کے گھروں اور خاندانوں کے لیے، بالخصوص اپنے ڈائیوسس کے تمام پیرشز کے لیے، اور سیرت باپ بشپ سیمسن شوگردین کی ان فکروں کے لیے، ان مناجات کے لیے جو وہ اپنے دل میں کلیسیا کی ترقی اور کے فروغ کے لیے کرتے ہیں۔ شکر گزاری کے طور پر یہ اقدس قربانی گزارتے ہیں نعمان جاوید کے خاندان کے لیے، بیماروں میں شفا کے لیے ایرش کرن کے لیے، ایرن ولسن کے لیے، سونیا اسلم کے لیے اور سارن لطیف کے لیے۔ آج کی اقدس قربانی گزارتے ہیں شکر گزاری کے طور پر سسیلیا روسیکا کے لیے، جس کی آج سالگرہ ہے، یوسف اگسٹن البرٹ کے لیے اور وکاس کی ٹرانسفر کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ایماندار اور امید کو بھی آج کی اقدس قربانی میں یاد کرتے ہیں، بالخصوص حسین حاکم کے لیے یہ پاکماس گزارتے ہیں، شیرہ حسین کے لیے، نیتا رحمت کے لیے، عنایت شیرہ کے لیے، سادی مسیح کے لیے اور نذیرہ ممتا کے لیے۔ آئیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس اقدس قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے کمزور اور گناہ گار ہونے کا اقرار بھی کریں۔
सब्जी जिंदगी बाप और बेटे और पाक के नाम में आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद में शादमानी करें और तमाम इस मुबारक मौके पर फरिश्ते भी अपनी खुशी जाहिर करते हैं और खुदा बेटे की हम सराही करते हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, आपके साथ भी हो और आप सबके सामने हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में अता करे। आमीन। आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुमिन को रब्बी खुदा, ये कितनी खुशी की बात है कि हम एक ही दिन में तमाम मक़दसों को उनकी नेक जिंदगियों और फजीलतों के साथ याद करते हैं। तू हमें ये मौका इसलिए देता है कि बेशुमार सिफारिश करने वालों का लिहाज करके तू हमें अपनी शफ़क़त की भरपूर फरावानी अता कर सके। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। नस्ल, कबीले और जुबान से एक बड़ा हजम लेगा जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। मानवी आज की पहली तिलावत मुबाशरा की किताब 7वां बाब 2 से 4 और 9 से 14 आयत तक। एक दिन मैं यूहन्ना ने एक और फरिश्ते को मशरिक से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ये दिया गया था कि जमीन और समंदर की नुकसान पहुंचाएं, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम खुदा के बंदों को पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम जमीन और समंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहर की गई थी सुना कि ये बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और जुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तब और बर्रे के हजूर में खड़े हैं और बुलंद आवाज से ललकार कर कहते हैं कि निजात हमारी खुदा की जो तब नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तब और उन बुजुर्गों और उन चारों जानदारों के गिरदागिर्द खड़े हैं। फिर वो तब के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा आमीन। बरकत और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और कुव्वत अब्दुल अबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि ये जो सफेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा कि ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामे को बर्रे के खून में धोया है
और उन्हें सफेद किया है। पाँव के पड़े और सही जाने पर खुदावन की बरकत हो। आज की सुबह का जमाती शुरुआत है। ऐसे याद हैं जो तेरे दीदार के ख्वाब हैं। ज़मीन और उसकी मामूली खुदाबंदी है। जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसने कायम किया। ऐसी आदमी है जो तेरी दीदार के ख्वाब है। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? उसके मुक़द्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना दिल नहीं लगाता। ऐसी आदमी है जो तेरी दीदार के ख्वाब है। वो खुदावन की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुष्ट है जो उसके नाम है और याकूब के खुदा के दीदार के ख्वाब है। ऐसी आदमी है जो तेरी दीदार के ख्वाब है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत 3 बाब 1 से 3 आयत। हम खुदा को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ऐ बच्चों,
देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हमने भी दुनिया हमको इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने उसको भी नहीं जाना। ऐ प्यारो, अब हम खुदा के फर्जंद हैं, और ये तो अब तक ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी माने होंगे, क्योंकि उसे वैसा भी देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक रखता है जैसा वो पाक है। पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु के इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। इसका 5 बाब 1 से 12 है। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो भूखे गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखते हैं। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना करें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। हम सब खड़े रहेंगे जब तक विशुद्ध भाव से प्रार्थना करें।
سمجھاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے تمام تر خیالات، باتیں، افکار، سپنا قرآن کی نظر کرتے ہیں۔ پھر خدا ان کا کلام ہم سے کلام ہو چکا ہے اور وہ ہم سے فردن کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم اس کے پاس اے خدا تمہارے دل کی تاریکی کو دور کر دے، ہمیں کامل یقین و پختہ ایمان عطا کر تاکہ ہم تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے مقدسین کی گروہ میں شامل ہونے کے لائق ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو تمام مقدسین کی عید مبارک ہو۔ میرے عزیزوں، یہ عید انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس عید کے موقع پر آپ ان تمام مقدسین اور شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کیا، دکھ اٹھائے، مصیبتیں سہی اور ثابت قدم رہتے ہوئے اس کاملیت کے رستے کو اپنایا اور کاملیت کے درجے تک وہ پہنچ گئے۔ آج ہم ان تمام مقدسین کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے بچے مختلف لباس پہنے ہوئے اور مختلف مقدسین کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے سامنے ہیں، اور ان کی زندگیوں سے، مقدسین کی زندگیوں سے ہمارے لیے ایک رہنمائی ملتی ہے۔ اکثر ہم جب زندگی کاملیت کے سفر کی بات کرتے ہیں، مسیح کی ایمان پر چلنے کی بات کرتے ہیں، تو مسیح کی ایمان پر چلنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ زندگی کو، زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو مقدسین ہمارے رہنما بنتے ہیں۔ اس مشکل زندگی میں، مشکل حالات میں وہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ خوف نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ وہ زندگی دینے والا ہے، دروازے کھول کے رکھتا ہے۔ اس لیے میں جو آج کی جو پہلی دعوت ہم نے سنی ہے کہ خداوند کے فرشتے اترتے ہیں اور ان پر جو خداوند کی نظر میں مقدس ٹھہرتے ہیں ان پر مہر کی جاتی ہے۔ ہم سب بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم پر مہر کی گئی ہے، لیکن مہر جس پر ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ مہر جس پر ہوتی ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے۔ گریگری تیسرے نے مقرر کیا اور یہ شروع میں صرف روم میں کی حد تک محدود تھی اور آہستہ آہستہ اس کی روایت جو ہے پورے یورپ اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کو ہالووین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہالووین مناؤ گے؟ کہتے نہیں، میں یسوع مناؤں گی، ہالووین نہیں مناؤں گی۔ کیا مناؤں گی؟ یسوع کو منانا۔ اور میرے عزیزوں، ہم ہر روز یسوع کو مناتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم پاک ماس کرتے ہیں تو پاک ماس میں یسوع کو مناتے ہیں۔ یسوع سلطان پر ہمارے لیے اترتا ہے، یسوع سلطان پر ہمارے لیے قربان ہوتا ہے اور یسوع ہمارے درمیان اترتا ہے۔ آج کس نے دیکھا ہے کہ میں اپنے برگزیدہ کو گلنے سڑنے نہیں دوں گا، میں اپنے برگزیدہ کو گلنے سڑنے نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے مقدسین، لیکن اس رستے پر چلنا اتنا آسان ہے لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند ہمیں وہ راہ سکھاتا ہے، خداوند ہمیں وہ راہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس قدوسیت کی تقدس کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ سب نے لکھا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنے جامے خداوند کے خون میں دھوئے ہیں، خداوند کے کلائی الطار، خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر قدوس قدوس کے نعرے بلند کرتے ہیں
طلائی الطاف اور بخور کی صورت میں ہماری دعائیں خدا کی نظر کرتے ہیں۔ پھر اس کو کیتھولک روایت کے مطابق ہمارے یہاں اتنا زیادہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی، جو کیتھولک ملک ہے، کیتھولک خاندان ہے، ہر ایک خاندان نے ایک مقدس اپنے خاندان کے لیے چنا ہوا ہے۔ باجی چھاٹو کہہ رہے چھوڑ دو، پھر بات میں کرنے ہر ایک خاندان کا ایک خاص مقدس ہے، اور وہ اس مقدس سے شفاعت انہوں نے اپنے گھر میں اس کے لیے خاص جگہ بنائی ہوئی، اس کا اسٹیچو ہے اور اس کی شفاعت چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کے ذریعے رہنمائی چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے کچھ خاندان یسوع کے پاک دل سے عقیدت کرتے ہیں، کچھ ہے جو مقدسہ مریم کے بے داغ دل سے عقیدت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہ بے داغ دل کی اپنی دعا ہوتی ہے، یسوع کے پاک دل کا نبینا ہوتا ہے، وہ یسوع سے جڑے رہتے ہیں، ایمان میں قائم رہنے سے ثابت جان دینے تک وفادار رہے کہ میں تجھے، اور یہ وہ مقدسین ہیں جنہوں نے جان دینے تک وفاداری ضروری ہے۔ انسان کمزور ہے، گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، لیکن وفاداری ضروری ہے۔ اے خدا سے فضل چاہیں، برکت چاہیں، تاکہ ہم اسی میں ایک ہو کر ایک مقدس موجودہ درجہ پا سکیں، اسی ہماری خدا کی نصیب سے۔ جب مقدسین کی عید مناتے ہیں اور ہم نے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمارے لیے سفارشات کرتے ہیں، خداوند بخش دے کہ جو دعائیں ہم اپنے مقدسین کے سامنے پیش کریں وہ سب کی سب خداوند کے حضوری میں مقبول نظر ہو۔ اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن، ابھی آپ سب تشریف رکھیں۔ جنہیں خدا نے دنیا کی تخلیق سے نجات کے منصوبے کے لیے چن لیا تھا۔ مقدسہ مریم کے والد کا نام یویاقیم اور ان کی والدہ کا نام حنا تھا، اور وہ داؤد کی گھرانہ میں پیدا ہوئی تھی۔ مقدسہ مریم بچپن ہی سے خدا کے گھر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن خدا کا فرشتہ مریم کے پاس آیا، نجات کا پیغام لے کر خدا کی طرف سے۔ تب مقدسہ مریم کی ممی یوسف کے ساتھ ہو چکے تھے۔ تب ہی سے وہ مقدسہ مریم خدا کے پیغام کو قبول کرتی۔ تب ہی سے وہ مقدسہ مریم خدا کی مسیح کی ماں اور ہم سب کی ماں بھی کہلاتی ہے۔ ہم دعا کریں کہ جس طرح مقدسہ مریم نے فرشتے کے پیغام کو قبول کر کے نجات کے منصوبے کو پورا کیا، اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کے قریب ہو کر اپنے لیے خدا کے پیغام کو جانیں اور پورا کریں۔ اے مقدسہ مریم ہمارے راستے دعا کرو۔ بائبل مقدس میں مقدس یوسف مقدسہ مریم کے شوہر ہر
शौहर हैं। उन्हें एक नेक और रास्तबाज आदमी के तौर पर पेश किया गया है जो मसीह की इब्तदाई जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। मुक़द्दस यूसुफ की शख्सियत नेकी, शफ़क़त और खुदा पर पुख्ता ईमान की मिसाल है। बाइबल मुक़द्दस की दास्तान में इन्हें एक मोहब्बत करने वाले शौहर और फिक्रमंद वालिद के तौर पर पेश किया गया है जो अपने खानदान की हिफाजत और ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। उनका खामोश मगर अहम किरदार ये बताता है कि शरीके हयात की हमायत करना और खानदानी जिम्मेदारियों को निभाना कितना अहम है और ये कि वो मसीह की इब्तदाई ज़िंदगी की कहानी में एक लाजमी शख्सियत है। हम दुआ करें कि जिस तरह मुक़द्दस यूसुफ अपने खानदानी ज़िंदगी में बेहद फिक्रमंद और पुरखलूस नज़र आते हैं, इसी तरह आज की नौजवान नस्लें और हम सब अपने खानदानों में फिक्रमंद और संजीदगी इख्तियार करें। ऐ मुक़द्दस यूसुफ हमारे वास्ते दुआ कर। मुक़द्दस याराना इतनी की जगह असीसी में रहने वाली हूँ। मैं सैन फ्रांसिस के पैरोकार हूँ। कलसदारा ने गरीब क्लारा के नाम से फ्रांसिस बहनों की जमात कायम की और यीशु मसीह को पाक साक्रामेंट में मौजूद होने पर पुख्ता ईमान रखती है और पाक यूक्रिस्ट को तमाम मौजूदों का सर चश्मा समझती है। क्लारा के नाम का मतलब है दर्शन। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी शहर के रहने वाले थे। वो बहुत अमीर थे और ऐसी जिंदगी जीते थे। खुदा उसको रोया में मिले तो खुदा ने उससे कहा कि मेरे घर की तामीर कर। मुक़द्दस फ्रांसिस ने खुदा की बुलाहट को जाना और उसके घर की तामीर करना शुरू की। मुक़द्दस फ्रांसिस कायनात को बहुत प्यार करते थे और कायनात की हर शय को अपने बहन और भाई कहकर पुकारते थे। मुक़द्दस फ्रांसिस को 5 जख्म भी मिले थे और अपनी मौत के वक्त भी उन्होंने मौत को अपनी बहन कहकर पुकारा था। हम दुआ करें, ऐ खुदा, जिस तरह मुक़द्दस फ्रांसिस कायनात को प्यार करते थे और अमन का व्यवहार बना, हमें भी तौफीक दे कि हम भी एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और सुलह सलामती के साथ रहें। मुक़द्दस फ्रांसिस हमारे वास्ते दुआ करें। मसीह के 5 जख्म हासिल हुए। आप लोगों के दिल इकरार को पहले ही से जान लेते हैं। आपको 2 मुख्तलिफ जगहों पर होने का फजल हासिल था। 1920 में आपने एक दुबाइया मुल्क का आगाज किया जो आज भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। आपके इंतजार पर बीमारों की मनी दुख मुनासिब देखकर आपके लिए खुदावन के लिए बहुत दुख है, लेकिन आप हमेशा वफादार हैं। इस तरह 23 मुक़द्दस मरियम, मुक़द्दस यूसुफ
और इनके हमराहों पर फरिश्ता जबराइल। मुकद्दस मरियम की पैदाइश यरूशलेम में हुई। उनके वालिदैन का नाम हन्ना और याकीम है, जो कि करीम मूसा से औलाद थे। आप बचपन ही से मुकद्दस मरियम इंतहाई दिलदार थे, जो उनके मुस्तक़बिल के किरदार के लिए इन्हें तैयार कर रहा था। जब मरियम जवान थी तो इन्हें खुदा की तरफ से पैगाम मिला कि वो बेटे की मां बनने के लिए चुनी गई है, जिसका नाम यीशु होगा। मुकद्दस मां हमारे वास्ते दुआ कर ताकि हम मसीह के वादों के लायक बन जाएं। जिब्राइल फरिश्ते का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बुनियादी फरिश्तों में होता है, जो खुदा और इंसानियत के दरमियान पैगाम रसाई का किरदार अदा करता है। जिब्राइल के नाम का मतलब खुदा मेरी कुव्वत है, और वो उम्मीद और वही के पैगामात के साथ मुंसलिक है। मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ के पास निजात का पैगाम लेकर आने वाला फरिश्ता भी जिब्राइल था। जिब्राइल फरिश्ते को आर्चएंजल गैब्रियल भी कहा जाता है। जिब्राइल फरिश्ते की ईद बाकी मुकर्रम फरिश्तों मिकाईल और रफ़ाइल के साथ 29 सितंबर को मनाई जाती है। ऐ जिब्राइल फरिश्ते हमारे वास्ते दुआ करो। मुकद्दस यूसुफ की मम्मी मुकद्दस मां मरियम से हुई। इनके वालिद का नाम याकूब था, जो बैतलहम में शाह दाऊद की नस्ल में पैदा हुए। मुकद्दस यूसुफ एक रास्तबाज इंसान था और मुमकिन तौर पर माहिर और बड़ी था। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मां मरियम एक गवाही और पाक जोड़े थे। मुकद्दस यूसुफ मसीह यीशु के ज़मीनी वालिद बने। मुकद्दस यूसुफ की ईद 19 मार्च को मनाई जाती है। मुकद्दस यूसुफ 19 मार्च को मनाई जाती है। 19 मार्च को तारीख का इंतखाब इसलिए किया गया है कि इनकी मौत की तारीख समझी जाती है। हालांकि इस तहरीक के लिए कोई तहरीर बुनियाद मौजूद नहीं है। मुकद्दस जोसेफ के पास एक और दिन है जो ईद के दिन मुकर्रर किया गया। सेंट जोसेफ दी बरकत की ईद ये 1 मई को मनाई जाती है। इस दिन का इंतखाब मुकद्दस यूसुफ को मेहनत कशों के सरदस्त के तौर पर पढ़ने के लिए किया गया है। ऐ मुकद्दस यूसुफ यीशु मसीह को कतार के पाक मौजूद होने पर पुख्ता ईमान रखती थी और पाक यूक्रिस्ट को कलाम का नाम का मतलब है नाराज में ये बहुत थी, दूसरों की मदद करने वाली थी। आज हम जिसके बारे में जानेंगे, इनको ये एजाज भी हासिल है कि बच्चा यीशु इनके साथ खेला करता था। इनका पूरा नाम मुकद्दस एंथनी ऑफ
जा रहा है। मुकद्दस एंथनी ने बहुत ज़बरदस्त खिदमत की थी। मुकद्दस एंथनी निहायत रहमदिल था, निहायत इसने लोगों में काफ़ी खिदमत को अंजाम दिया। खुदावंद में बहुत पुरजोर था। मुकद्दस एंथनी ने जो कि बच्चा यीशु उसके पास आकर खेलता था, और इनकी जब कोई भी दुआ मुकद्दस एंथनी की सिफारिश से खुदावंद तक जाती है, तो वो आज तक कभी भी कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो ये कहे कि उनकी दुआ सुनी ना गई हो। खास तौर पर जब भी अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है, वो नहीं मिलती, मुकद्दस एंथनी से जब दुआ मांगी जाती है तो वो चीज़ उन्हें मिल जाती है। ये हमारे फादर यानी हमारे बिशप सैमसन ने ये उन्होंने भी हमको बयान किया था, और ये जिंदगी में भी ऐसे ही मुकद्दस एंथनी का नगीना भी पढ़ा जाता है। तो मुकद्दस एंथनी से हम बहुत ज़्यादा दुआ को भी है। ऐ मुकद्दस एंथनी हमारे पास बहुत रहमदिल थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम कर दी थी। उन्होंने उनके घर वाले भी काफ़ी यानी कि इस बात के लिए कहा करते थे, मतलब शादी के लिए, लेकिन उसने कहा कि मेरा इरादा खुदावंद में भरपूर मशगूल है। उसने छोटी उम्र में ही ये फैसला करने दिन से कर था कि मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ खुदावंद के नाम कर दी है, और उसने इतनी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी। बेहद वो अकेली तन्हा थी, उनके साथ कोई भी नहीं था। वो जिस जुमायत में थी वहाँ भी उन्होंने खिदमत की, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी देखा कि इनकी खिदमत बहुत अलग है, वो सबसे अलग वो खिदमत को अंजाम दिया। अगर आज हम उनकी स्टोरी को निकाल कर देखते हैं मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा का बेहद अहम दिल था। वो किसी को भी दुखी नहीं देती थी। उनका पैगाम यही है, सब लोग एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने हर एक की मदद की भरपूर तौर पर। हम उनसे दुआ करेंगे हमारे वास्ते। शायद कम लोग भी होंगे जिन्हें इनके बारे में मालूम होगा, लेकिन मुकद्दस फिलोमिना एक शहजादी थी, एक बादशाह की बेटी थी, और इसको हर चीज़ पर प्यार भी था। इनकी कहानी इस तरह से है कि मुकद्दस फिलोमिना 13 साल की उम्र में इन्होंने बेहद बहुत जुल्म इनके ऊपर हुए। वहाँ एक जुल्म करने वाला बादशाह था, जहाँ पर इनके वालिदैन थे। ये अपने माँ बाप की इकलौती थी। मुकद्दस फिलोमिना बहुत ईमानदार थी, बहुत मजबूत थी। एक इसने ये मतलब दिल में अहद किया था कि वो भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद के नाम करेगी। कैद खाने में रखा, इनके पास वालिदैन भी ना थे। इनकी माँ, उनके बादशाह जो बाप थे, उनको भी जब कत्ल कर दिया गया, तो जब ये कैद खाने में थी तो मुकद्दस मुसलसल रोज़नी पड़ती थी। वहाँ पर मुकद्दस मरियम इनके पास ज़ाहिर हुई उस कैद खाने में। इसलिए इटली में जो कुछ तेल है वो ब्लेसिंग के हैं, क्योंकि मुकद्दस मरियम वहाँ पर आई, उनके फरिश्ते थे। वो जब वहाँ पर आए तो उन्होंने इनके जख्मों पर इन्हें मलहम लगाया, और वो तेल लगाते ही वो सारे जख्म उनके खत्म हो गए। इसलिए वो तेल आज भी ब्लेसिंग ऑयल है, और उसे यानी कि किसी नाम से जाना जाता है। तो मुकद्दस फिलोमिना का उन्होंने यही पैगाम दिया कि भले यानी कि हम लोगों की हम दुआ करेंगे। मुकद्दस फिलोमिना पतरस रसूल वो दूसरा रसूल है जिसे इब्तदाई कलीसिया की तारीख के लिए अहमियत के लिहाज से पौलुस रसूल के बराबर कहा जा सकता है। उसका पहला नाम शमौन था, लेकिन वो पतरस के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जो आरामी लक़ब कैफा, जिसका मतलब चट्टान है, का यूनानी तर्जुमा है, जो इसे यीशु मसीह ने दिया था। इब्तदाई कलीसिया में पतरस की अहमियत का अंदाज़ा यीशु मसीह के ज़रिए से उसके खुसूसी नामों से लगाया जाता है, और ये अहमियत रोम की कलीसिया के साथ उसकी वाबस्तगी की रोशनी में भी तशकील पाई। ऐ मुकद्दस पतरस हमारे वास्ते दुआ कर। मुकद्दस फ्रांसिस सेवियर
सेंट फ्रांसिस जेवियर, पैदाइश 17 अप्रैल 1506। जेवियर किला सांवेसा के करीब नावे, स्पेन। वफात 30 दिसंबर 1552। सांसियान अब शांचू, जजीरा चीन। 12 मार्च 1622 को ईद का दिन 3 दिसंबर। जदीद दौर का सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक मिशनरी था, जिसने हिंदुस्तान, मालाई, जजीरा नुमा और जापान में मसीहा के क्याम में अहम किरदार अदा किया। 1534 में पेरिस में उसने लोयोला के सेंट अगस्टिन के क़यादत में सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसस के पहले 7 अरकान में से एक के तौर पर अहद का ऐलान किया। मुक़द्दस फ्रांसिस जेवियर 1910, 5 सितंबर 1997, जिसे मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, और वो अल्बानियाई कैथोलिक थी, चैरिटी के मिशनरी। इनकी परवरिश एक अकीदतमंद कैथोलिक खानदान में हुई। 18 साल की उम्र में वो सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में शामिल होने के लिए आयरलैंड चली गई और बाद में इंडिया चली गई, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा और अपना मिशनरी काम अंजाम दिया। 4 सितंबर 2016 को इन्हें कैथोलिक चर्च ने कलकत्ता की सेंट टेरेसा के तौर पर तस्लीम किया। इन मौजूदात में से एक जो उसकी कैनोनाइजेशन के लिए एक शर्त थी, चैलेंज किया गया। इसकी बरसी 5 सितंबर को अब इसकी ईद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी, एक मजहबी जमात जो कि इब्तदाई तौर पर कलकत्ता की अच्छी आबादियों में गरीब तरीन लोगों की खिदमत के लिए वक़्फ थी। नुमाइयों के दौरान जमात 2012 तक 133 से ज़्यादा ममालिक में काम करने के लिए बढ़ी, 6 जिसमें 4500 से ज़्यादा राहबाएं एड्स, HIV, कोढ़ और तपे दिल से मरने वालों के लिए घरों का इंतजाम करने के साथ साथ सोप किचन डिस्पेंसरियां चला रही हैं। मोबाइल क्लिनिक, यतीम खाने और स्कूल हुक्म के अरकान, इफ़्फ़त, गुर्बत और फरमाबरदारी की अहद करती हैं और उनका नारा है गरीब तरीन गरीबों, कमी दिल से मुफ्त खिदमत। मुक़द्दसा टेरेसा मुक़द्दस कार्लो एडवर्टाइज 3 मई 1991, 12 अक्टूबर 2006 एक अदालती वेबसाइट डिजाइनर था, जिसने यूनिवर्सिटी मुआवजात को दस्तावेजी शक्ल दी और मालियन ऑपरेशंस की मंसूबी थी, और दोनों को एक वेबसाइट पर कैटलॉग किया जो उसने ल्यूकीमिया से अपनी मौत से पहले डिजाइन किया था। एडवर्टाइज को उसकी खुशमिजाजी, कंप्यूटर की महारत और हिपाप इंटरेस्ट से लगन के लिए जाना जाता था, जो उसकी जिंदगी का बुनियादी मौसू बन गया। मुक़द्दस कार्लो हमारे पास से दुआ करें। पोप जॉन पॉल की पैदाइश 18 मई को हुई। कैथोलिक चर्च और 1978 से लेकर 2005 में अपनी मौत तक वेटिकन सिटी स्टेट का हुक्मदार। अपनी जवानी में वो जितलानी स्टेज अदाकारी में हिस्सा लिया। उसने 1938 में पोलैंड के शहर कॉर्डोबाइस के और बॉयज हाई स्कूल से बेहतरीन ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन किया, जिसके फौरन बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जंग के दौरान अगवा होने और जर्मन जबरी मुशक्कत के कैंप में भेजे जाने
पर हुनरमंद यूनिवर्सिटी में कॉलेज जुबान पढ़ना चाहता था। एडम स्टीफन समीहिया के साथ बातचीत से हौसला अफजाई करते हुए उसने दीनियात का मुताला करने और एक पादरी बनने का फैसला किया। बिलाके मुजेतला कराकाओ के आर्च बिशप और फिर एक कार्डिनल के तहत औहदे पर फाइज हो गए। दोनों औहदे उसके सरपरस्त के पास थे। वो 1978 के दूसरे को तनीतियों के तीसरे दिन को मुंतखब हुए और तारीख के सबसे कम उम्र लोगों में से एक बन गए। ये कॉन्फ्रेंस जॉन पॉल अव्वल की मौत के बाद बुलाई गई थी, जिसने पोप के तौर पर सिर्फ 33 दिन खिदमत अंजाम दी। पोप ने उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हुए अपने देशों का नाम अपनाया। मुक़द्दस पोप जॉन पॉल ने हमारे पास से दुआ के सरचश्मे जो तुम्हारे बड़े ईमान और इस्तेक़लाल के साथ मुकद्दीन की शफ़ाअत और सिफारिशों से तेरे हुज़ूर पेश की गई हैं, तुमने सब कबूल कर मसीह खुदाबंद के वसीले से। मुबारक है वो जो पाक हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ती के सबब सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाह उन्हीं है। आइए दुआ करें। ऐ मेहरबान बाप, हर तकदीस के बानी और नाफिज, हम तमाम मुक़द्दसों में तेरी अज़मत और कुदरत को सजदा करते हैं। हम तेरा खास फजल इस मकसद से तलब करते हैं कि पाक शराकत लेकर आसमान का सफ़र करते हुए हम भी तेरी मोहब्बत की अफ़ज़ाइश में शरीक होकर आसमानी ज़ियाफ़त के दस्तरख़्वान पर सबसे मिलने पाए। मसीह हमारे खुदा के वसीले से मुक़द्दसों के जलाल और सादत का बानी खुदा आज की ईद के मौके पर आपको पुरअसर बरकत अता फरमाए। आमीन। वो आपको बख्शे कि आप उनकी सिफारिशों पर मौजूद वो बदियों से बचकर और उनकी नेक ज़िंदगी के नमूने से तरबियत पाकर हर वक्त खुदा और भाइयों बहनों की खिदमत पर आमादा रहें। आपको उन सब की रफ़ाकत में उस वतन की खुशियाँ नसीब हो जहाँ पाक कलीसिया इंतहाई शादमानी से अपने बेटे और बेटियों को आसमानी बाशिंदों की हमनशीन होते देखती है। कादिर मुतलक खुदा आप सबको बरकत दे। आप और बेटे और पाक के नाम में बादल हो चुकी, आप सब सलामती में रहें। आप सब अभी आप लोग क्या गाएंगे? हैप्पी मुक़द्दस राइट करेगा। हैप्पी सेल्स, हैप्पी सेल्स, हैप्पी सेल्स।